डीएचए लाहौर के घरों में चोरियां करके अपने घर और जायदादें बनाने वाला चोर पकड़ा गया। पूरे डीएचए में इसने तहलका मचा रखा था। चोरी की प्लानिंग इंतहाई हैरानकुन तरीके से करता और पुलिस कोशिश के बावजूद इसको पकड़ ना सकती थी। राब्ता कैसे होता था? कूलर से पानी वाला द्वार से उतने लिख देने से कितने बजे मिलना है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। आज की स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे डाकू जो आपस में फ़ोन पर कोऑर्डिनेशन नहीं करते थे, बल्कि एक वाटर कूलर के ऊपर चौक से टाइम लिख दिया करते थे और दूसरा साथी मौके पर उसी पर जाकर अपना टाइम मेंशन करता था और इस तरह से आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन होती थी और फिर ये डिफेंस के पोश एरिया में चोरियां डकैतियां करते थे, लोगों के घरों की रैकी करते थे। सवाल ये पैदा होता है कि ये फ़ोन पर कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करते थे। उसकी वजह यह है कि क्योंकि फ़ोन की CDR निकल आती है और मुलजिम ट्रेस हो जाते हैं। आपको इनका सारा रिकॉर्ड और इनकी डिटेल्स बताते हैं। मुलजिमान मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? खिजर यार। उम्र कितनी है? 44 साल। चोरियों और डकैतियों के अलावा क्या क्या किया है? काम करते सी, ड्राइविंग करते सी कोठी। कोठियों में ड्राइविंग करते थे। फिर ये डकैतियों की तरफ किस उम्र से आए हो? इस 2012 ਚ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। कितने पर्चे हो गए एक मोटरसाइकिल के? 7 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। एक मोटरसाइकिल के 7 पर्चे हो गए थे। ਉਹਦੇ ਤੇ 7 ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। फिर उसके बाद ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਫਿਰ 2015 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫੜੀ। कितनी देर जेल काटी? ਤਕਰੀਬਨ ਘਟੀ ਸੀ 11 ਮਹੀਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋੜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਦੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। काम क्या कर लिया? ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। डकैती की ना? कहाँ पर? डिफेंस घर था, दुकान थी, क्या था? ਘਰ 'ਚ। कैसे की? वो सारी कहानी सुनाओ ना, कैसे की थी? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਜਦ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੇਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਤੀਲਾ ਵਗੈਰਾ। ਬੇਗਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ। अंदर कैसे घुसते थे? दीवार थनी या गेट थनी। गेट से अंदर गए, उसके बाद एक और आगे दरवाज़ा होता है, उससे आगे एंटर कैसे होते थे? ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਸਨ ਰੈਂਚ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। और ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। जो पहली चोरी की थी उसमें से कितना कुछ लेकर गए? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। कैसे पता चला कि 4 लाख कहाँ पड़ा है और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे चले गए? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ 'ਚ 2.5 ਲੱਖ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਮੀਆਂ ਚਲੋ ਉਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਡੇਢ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ 44 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। टोटल कितने पर्चे हैं आप पर? ਤਕਰੀਬਨ 60-65 ਹੈਗੇ। 60-65 पर्चे? तो 60-65 पर्चों के बाद कैसे घूमते हो सरेआम? ਨਹੀਂ ਉਹ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ। कितनी रिकवरी पुलिस को दी है? ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਲੇਬਰ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗਿਰਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ये कहाँ मिला था? ਇਹ 2016 ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2015 ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, 13 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। जेल में दोस्ती हुई थी? क्या नाम है? रहमत अली। रहमत अली। क्या करते हो? काम करना से पहले दिहाड़ी के बाद चोरियां करन डे मैं। कैसे? बाहर फिरने हैं, डिफेंस घर देखने जिते ताला लगा हुंदा सी उत्थे असीं अंदर वड़ जाने, निशानी ला देने हैं, कोई तीला वगैरह जिधर लाइट बलदी हुंदी सी वो कंध दीवार टपनी या कंध ते अंदर जाके दरवाज़ा तोड़ना, फिर तलाशी करनी, जो लभना लै जाना, पैसे या जेवर। पकड़े नहीं कभी गए? कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया? नहीं नहीं। नहीं।
इसके साथ दोस्ती कहाँ हुई? जेल में। आप किस जुर्म में जेल काट रहे थे? ਮੈਂ ਕੁਆੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਫੜੀਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। पहले भी चोरियों का काम था कबाड़ के साथ, फिर उसके बाद पक्की चोरियां शुरू कर दी। कितने पर्चे हैं आपके ऊपर? 40-45 पर्चे। फैमिली कहाँ है? वट्ठा चौक। उनको पता है आप चोरियां डकैतियां करते हैं? ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। मना नहीं करते थे? ਕਰਦੇ ਸੀ क्या कहते थे आप? ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। और कौन कौन है आपके गैंग में शामिल? ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ। जब जाते थे किसी भी घर को निशाना बना के रैकी करके, तो क्या क्या औजार साथ लेकर जाते थे? रैंच और पेचकस। रेंच से क्या करते थे? ताले तोड़ने से। और पेचकस से? पेचकस ना दराज वगैरह खोल दे अंदरों। आपस में कोऑर्डिनेशन, बातचीत, मैं उधर आ रहा हूँ तुम आ जाओ, आज इस घर को निशाना बनाना है, होती होगी ना? कैसे होती थी? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਸਾਂ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੂਲਰ ਸੀ ਤੇ ਕੂਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। कहाँ पर? डिफेंस में। डिफेंस में खड़े होके मिलते थे? फोन पे राब्ता नहीं था? नहीं, फोन नहीं सी। फोन पे राब्ता क्यों नहीं? फोन नहीं था आपके पास? क्यों? फोन रखे ही नहीं सी क्यों फोन नहीं रखा था? कि ट्रेस हो जाने, फड़े जाने फोन ट्रेस। ये भी पता था, जहन इतना शार्प है कि फ़ोन ट्रेस हो जाएगा, तो फ़ोन पर एक दूसरे से कॉल पर राब्ता नहीं करना, क्योंकि CDR निकल आती है। ऐसे ही है? अच्छा, फिर राब्ता कैसे होता था? बाहर उत्ते डिफेंस मिलने सा तो उत्ते मिल के कूलर सी पानी वाला द्वार से उत्ते लिख देने सा कि इन्ने बजे मिलना है, इन्ने बजे, फिर उत्ते मिलने सा। वो कूलर एक ही था या हर घर का अलग-अलग कोई कूलर था? कूलर सी जेड ब्लॉक्स उत्ते मिलने सा हर दफा। उस पे टाइम लिखाते थे? जी हाँ? हाँ जी, टाइम क्या टाइम लिख के आते थे? 3 2 4 या 5। 3 से 5 के दरमियान यहाँ आना और मिलकर डकैती करेंगे, चोरी करेंगे। चोरी करते थे, चोरी। ये टाइमिंग्स होते थे। अच्छा, जो पहले पहुंच जाता था वो कूलर के पास खड़ा रहता था? नहीं, वो फिर अगो टाइम लेके के चले जाता सी कि मैं इन्ने बजे घंटे बाद आवांगा, कि पता लग जाता सी कि आ गया। ठीक है, फिर उतनी देर घंटा वहाँ इंतजार करते थे? नहीं, फिरते रहने सा, काम लभते रहने सा, घर कोई ना कोई जिधर ताला लगा हुंदा सी। हफ्ते में कितनी वारदातें करते थे? एक दिन। एक आधी में कितना ज़हन में टारगेट होता था कि इस हफ्ते इतने पैसे चुराने? क्या टारगेट था ज़हन में? अंदर घर च जो लभ जाना, कितों 2 लाख भी लभ जाना, कि खाली भी होंदे सी, कितों 5 लाख भी, इस हिसाब नाल। शर्मिंदा हो? हाँ जी, हाँ? हाँ जी। अब फिर जेल काट के फिर बाहर आके फिर यही काम करने? नहीं, अब नहीं करना। ये कितनी दफ़ा कहा? 2-3 बार। 2-3 मरतबा। और बाकी जो 40 पर्चे हैं उसमें नहीं कहा? उदों क्या, जो जेल जाते रहे, जो जेल जाते रहे उदों कहते रहे कि हुण नहीं करना। आपकी फैमिली को पता है? जी पहले पता सी, इस दफ़ा नहीं पता सी। पहले से मुराद क्या है? पहले जो फड़े गए थे। मुलजिमान की सारी कहानी आपने सुनी। इंस्पेक्टर वकार बुखारी जिन्होंने इनको ट्रेस किया है, DSP CIA जिनका बड़ा किरदार है, वो तमाम लोग इस कहानी के हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो है नकबजन गैंग था, डिफेंस में B और A, ये पूरे डिफेंस को इसने मुतासर किया हुआ था नकबजनी के हवाले से। हमारे जो SPC हैं और उनकी हिदायत के मुताबिक हमने ये ना इनकी तस्वीर जो थी, जो कैमरे से हासिल की थी, वो हमने शेयर की हुई थी डिफेंस वालों के साथ। उनको जो है ना ये सस्पेक्ट बंदा एक नाके पे मिल गया, फिर उन्होंने हमसे ये शेयर किया, हमने इसको कलेक्ट किया, उसके साथ इससे मिलके वो खिज़र था जो हमें मिला, उसको हमने आगे जब कैरी ऑन किया तो उससे आगे रहमत मिला। फिर इन दोनों से हमने मिल के जो है रिकवरी के मामलात जो हैं वो हमने चेक किए, तो तकरीबन 24-25 के करीब जो है वारदातें घरों से जो है ना इन्होंने ये नकबजनी की थी। अच्छा, ये वारदातें कैसे करते थे? ये वारदातें, ये एक बंदा था जो रहमत था, ये घर की रैकी करता था और मुख्तलिफ इनके तरीक़ाकार थे। एक तो ये था कि ये रुमाल दरवाजे के बीच में रख देना चेक करने के लिए कि अगर तो खुलेगा तो गिर जाएगा, पता चल जाएगा कि बंदे हैं। दूसरे ये घरों को जो है ना बजर करते थे, बेल बजाते थे कि अगर तो कोई आ गया, रिस्पॉन्ड हो गया तो फिर जो है ना ये पता चल जाएगा कि बंदा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इनके ऊपर टोटल CRO जब आप लोगों ने चेक किया तो कितनी FIRs दर्ज हैं? ये पहले से इनके ऊपर जो है ना 40 के करीब पहले भी ये इनके ऊपर पर्चे दर्ज हैं, CRO इनका मौजूद है, पहले से ये रिकॉर्ड याफ्ता है।
यही काम है इनका, जब भी ये बाहर आएंगे यही काम करते हैं। जो पर्चे दर्ज हैं वो ज्यादातर डकैती के हैं या कुछ और भी हैं? नहीं, ये सिर्फ नकबजनी करते हैं। इसका जो है होमवर्क चल रहा था, जितने भी रिकॉर्ड याफ्तगान हैं जो हमारे SPCI हैं, स्पेशली उन्होंने हमें ये टारगेट दिया हुआ था कि नकबजन जो है लाहौर में वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करनी, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। उसी सिलसिले की कड़ी थी कि ये तस्वीर जो है हमें डिटेक्ट हुई, जो उनसे शेयर की, तो उन्होंने हमें बताया कि फ़लाँ नाके पे ये डिटेक्ट हुआ है। फिर आगे जो बरामदगी का सारा मामला वो हमने खुद किया। कितनी रिकवरी की है? ये मैडम तकरीबन जो है ना 2 करोड़ के लगभग जो है ना रिकवरी हुई है, जो इंशाल्लाह जो है ना मदइयों में तकसीम हो जाएगी। और जहाँ पर हम बात करते हैं गोल्ड की ज्वेलरी की, वो कितनी है? वो तकरीबन मैडम 660 ग्राम के करीब बनती है, को 50-60 तोले बनती है, जो कि मदइयों को बुला के शनाख्त करवाई गई है कि अपनी अपनी वो चेक कर लें, उनको फिर हम दे देंगे, उनके हैंड ओवर करवा देंगे। शनाख्त करवा ली है? जी, शनाख्त करवा ली है। जैसे जैसे वो आएंगे अपनी कार्रवाई उनको जो है ना उनके हैंड ओवर कर देंगे उनको स्पुरदारी के बाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, शुक्रिया। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।